मयूरी सुधा जी के लिए नगमा अलग से एक छोटा सा। थैंक यू सर फॉर योर परमिशन। Oh my God, it's a pleasure sharing this stage with you. Thank you so much. Well, when I spoke to her, I think 5-6 days back, it is such a pleasure. One, I always thought I was born with a purpose in life. And today when you see girls like her becoming the next example for the next generation, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस दुनिया से चली भी गई तो the next generation is safe. Because they are going to take forward this legacy that I started. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसी लड़कियों की सख्त जरूरत है. And today we are so proud that she has performed. It's not easy. Let me tell you, dancing with an artificial limb is just not easy. A, it requires a lot of practice. Second, it requires confidence to come up on the stage and perform before an audience that is judging you. Not as a dancer, more as a fighter. Because I remember when I came on stage, there were about 50% audience who applauded me. There were 50% of audience who were judging me. तो वो 50% मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं डर रही थी कहीं मुझसे कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए. But each time मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद स्लिप कर रही हूँ. But I turned back and looked at my parents, my mother and my father, and they gave me the strength to go forward in life. So I say you be an example. Let many people look at you, and you do the work that probably I must have left unfinished. Okay? Well, I'm talking about how graceful I am, thanks to my gurus who trained me up so well, and thanks to my mother who used to carry me from school to dance school and back home, because she always thought that I was born to dance. So I think that is the reason why I'm still dancing. Thank you. No, I don't know. I mean, nobody knows who's going to leave when. But nevertheless, the point is, the legacy has to be carried forward. That's more important. And I'm so happy because I was dying to meet her. I spoke to her on the phone. And today, actually, it was terrible to get her off home. But I came to know that she has come here. And I really wanted her to be here to bless her. Because she is a person that I'm looking forward to, who's going to take this legacy ahead. God bless you. Thank you. Please have a round of applause. Vidyadhar sir. Our managing director, our chairman, ये शो इनकी 10 साल की मेहनत और तपस्या का फल है. Can I please have you here, sir? Institute that's run by Sudha ma'am. Make sure you visit. Make sure you learn. Thank you so much. That really means a lot to me. Thank you so much, ma'am. क्या बोले आप ही को बोलना है अभी. चलिए, सबसे पहले मैं सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं
उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे आए और हमें प्रोत्साहित किया। जो हमारा एक सपना था जिसको हम लोग 10 साल से जी रहे थे, 10 साल से देख रहे थे कि उभरते हुए जो भी हमारे पास हुनर के बच्चे हैं, शायद जो मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, सिंगिंग में जाना चाहते हैं, डांसिंग में जाना चाहते हैं, लेकिन आम तौर पे जो हम लोगों ने पिछले 10 साल में रियलिटी शो या शो के बारे में, टैलेंट शो के बारे में सारा रिसर्च किया, उसमें हमें ये पता चला कि एक ही प्लेटफॉर्म पे जूनियर सीनियर यानी 3 साल से 25 साल तक के टोटल बच्चे, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग और मॉडलिंग तीनों का हुनर हो। साथ ही साथ हम लोगों ने जब देखा कि कोई भी शो में होता क्या है, एक स्टेज होता है, सेलिब्रिटीज़ के लिए बैठने के लिए बेहतरीन सी कुर्सियाँ होती है, पीछे में एक LED वॉल होता है। और मैं मेरे मम्मी को भी थैंक्स बोलूँगा कि हम लोगों का हमारे बचपन में एक वेडिंग हॉल हुआ करता था। तो मैंने सोचा यार शादी जब होती है तो दूल्हा दुल्हन के लिए भी कुर्सियाँ होती है, स्टेज तो कहीं पे भी बन सकता है और लाइट और साउंड आजकल तो हर जगह उपलब्ध है। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग हर शहर में जाएंगे, उसी शहर से बच्चों को लेंगे, वहीं उनको ट्रेन और ग्रूम करेंगे और वहीं जाके शूट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सिटी सेंट्रिक शो का आगाज़ किया, जिसमें बताते हुए तहे दिल से खुशी होती है कि हम हर शहर में, हर कैटेगरी में 40-40 बच्चे लेंगे तो 240 बच्चे एक शहर से, यानी 7,200 परिवारों का सपना, अपने बच्चों का टैलेंट सेलिब्रिटीज़ के सामने दिखाने का मौका और शायद टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनको दिखाने का मौका, ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सुधा जी का, बीना जी का, साथ में हमारे जुड़े हुए उषा उत्तम जी का और बाकी सभी लोगों का, जो हमारे लिए सच में इस शो में आके उसको जज करने के लिए इन्होंने हमारे साथ सहमति दी, हमारे साथ जुड़ने के लिए ये हमारा सौभाग्य था। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार रहूँगा हमारे तमाम सुपर गुरुज़, उनके असिस्टेंट जो काफ़ी मेहनत करते हैं इन सब लोगों को ट्रेन करने के लिए, ग्रूम करने के लिए। साथ ही साथ हमारी मैनेजमेंट टीम, इसमें भी तमाम लोग हमारे साथ उपलब्ध है। मेरे राइट लेफ्ट में हमेशा रोहित शरयू हमेशा रहते हैं। हमारी मेकअप टीम जो खास करके सिम्बायोसिस कॉलेज से आती है और ये एक प्रोफेशनल वेलनेस इंस्टीट्यूट है और मेरी खुशनसीबी है कि मेरी ही एक क्लासमेट उनकी डायरेक्टर है और उन्हीं के थ्रू हमें तमाम ऐसे लोग मिले हैं जो पूरा मेकअप सारे ही लोगों का ऑल अक्रॉस इंडिया 30 शहरों में जाके करने वाले हैं। और निमिषा और आत्मजा करके 2 छोटी सी बच्चियां हैं, बेटियां हैं मेरी, वो हर जगह हमारे साथ आएंगी और सब लोगों का मेकअप करेंगी। तो ये नटशेल में पिछले 10 साल का अनुभव अब जब हम आपके सामने लेके आना चाह रहे हैं, यह है शहजादे हुनर के, जिसमें केवल हर हुनर के कलाकारों को जिनकी उम्र 3 साल से 25 साल हो, 7,200 परिवारों का सपना, भारत के 30 शहर, 18 डिस्ट्रिक्ट्स और सारे छोटे छोटे शहर में हम लोग जाके ये करने वाले हैं। सुधा जी आपके तरफ। थैंक यू सो मच। जैसे इन्होंने डेफिनेटली मैं इसका हिस्सा ज़रूर बनूंगी। और those were the times when we all danced, but हमें कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। प्लेटफॉर्म हम खुद ढूंढते रहे, या फिर मुझे याद है कि मेरे फादर पूरे अपने सैलरी प्लेजर करते थे ताकि एक स्टेज उनकी बेटी को मिल सके। But thank you so much, because today what the kids need is that platform. Because बच्चों का ख्वाब हो या ना हो, लेकिन माता पिता का ख्वाब जरूर उन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। And this is what we have to, we want all those dreams to come true. मैं ये नहीं बोलूँगी कि 3 साल की उम्र में मैं डांसर बनना चाहती थी, नहीं, ये मेरी माँ का ख्वाब था, वो चाहती थी कि मैं डांसर बनूँ। तो आज ऐसे कितने माएँ हैं, कितने ऐसे पिता हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चों को, they are very talented but they are not getting the right platform. तो I think this is the best platform that we are going to be offering. And मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं हर शहर जाकर उन बच्चों को जज करूँगी। हालांकि जज करने की मेरी कोई औकात नहीं है, आर्ट को कोई भी जज नहीं कर सकता। मैं उनके साथ वो जर्नी ट्रैवल करूँगी। हो सकता है कि जो whatever I have learned, I will share with them, और कुछ बातें शायद मैं उनसे सीखूँ मेरी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए।
So mostly, whenever you do a reality show, it's just a journey traveled with the kids because you understand what they want. And kudos to all the gurus who are going to be, grooming them. It's not easy because when kids come from different genres, तो उनको एक ही छत के नीचे एक ही ideology के साथ, एक ही concept के साथ train up करना. It's a very, very difficult task for you because today I would say that the kids are multi-talented. They are so talented. क्योंकि अगर टेलीविजन में कोई भी शो मैं देखती हूँ तो वो है रियलिटी शोज, और मैं ऐसे जुड़ जाती हूँ उन बच्चों के साथ कि मैं कहीं पर भी रहूँ, बट आई विल मेक श्योर कि मुझे वो सारे रियलिटी शोज देखने हैं. तो दैट इज हाउ आई ट्रैवल, एंड आई एम श्योर दैट विद दिस प्लेटफॉर्म वी आर गोइंग टू मेक सो मेनी किड्स रियलाइज देयर ड्रीम्स. So thank you so much on this very heavy rainy day. The Mumbai press never fails us. They always stand with us. And today look at that crowd, look at that crowd. And I always say that I have been a product of the press. Press ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि today so patiently even on this rainy day एक invitation पे सारे यहाँ हैं हमें प्रोत्साहन देने के. Thank you so much. We are always indebted to you. Thank you so much. मैं बीना जी को भी स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगा. साथ में बीना जी वैसे रिश्ते में मेरी मानी हुई बड़ी बहन है, और मैंने उनको बड़े बहन के तरीके से हमेशा देखा है. और मुझे जिस शहर में जहाँ पे भी जब भी ज़रूरत पड़ी है, बीना जी ने हमेशा हमारा साथ दिया है. ये भी हमारे साथ भारत के पूरे 3 शहरों में उपस्थित रहेंगे. जो भी यहाँ पे आ रहे हैं कोई तारीफ के बगैर कुछ कर नहीं सकते हैं. मैं थोड़ा सा तारीफ ही करके जा रही हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर ऑन दिस रेनी डे एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी. जैसे वो कहते हैं कि छोटा भाई और बड़ी बहन की रिश्ता जो है वो कुछ अजीब सा है, कभी झगड़ा तो कभी प्यार. तो ऐसा ही हमारे बीच में भी है, मगर फिर भी हम एक साथ हैं और साथ रहेंगे. और इस जर्नी में कुछ मैंने भी सीखा है, कुछ सिखाया भी है, कुछ डांटा भी है, मगर फिर भी अच्छा लगता है जब हम इतना इतने सब मैंने इनके साथ शायद 5-6 ऑलरेडी मैंने हमारे पहले शो में अपने कवर किया है. और वहाँ पे टैलेंट्स बहुत सारे थे. एंड इट्स सो नाइस टू सी देम वांटिंग टू डू सो मच. हमारे इतने सारे शोज होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो they are unlooked to. They do not get the opportunity to go into a star or a kind of a Z show or anything of that sort. So here it is so good of Vidyadhar ji to think this way, that to give the opportunity to every child, at least the chance to show himself and be appreciated. And I thank you for that. Thank you so much. ऐसा ही एक अनुभव मेरे ख्याल से सुधा जी का भी था. नागपुर के शो में हमारे साथ थे. हम लोगों ने इससे पहले बहुत सी जगह जाकर टैलेंट ढूंढने की कोशिश की है, क्योंकि ये पूर्व तैयारी में हमारे आता है. तो सुधा जी भी एक आध एक्सपीरियंस अगर नागपुर का शेयर करना चाहे. Of course विद्याधर जी, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा. नागपुर गई थी मैं इनके साथ, और हमेशा जैसे बीना जी कहती है तू मैं तो हमारा चलता ही रहता है. ये बोलेंगे कोविड नहीं है, मैं बोलूँगी कोविड है. ये बोलूँगी आप आ जाइए, मैं बोलूँगी मैं नहीं आऊँगी. तो इसी में हमारा काफ़ी समय निकल गया था. बट येस, अगेंस्ट ऑल ऑपोजिशन फाइनली विद्याधर जी जैसे आज मुझे उन्होंने कन्विंस किया, वहाँ पर भी मैं पहुँच गई. एंड जो टैलेंट मैंने वहाँ देखा है, आई मीन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फोर्स किया, नहीं तो मैं शायद वो मिस आउट कर जाती. जैसे बीना जी भी कह रही थी कि टैलेंट इज अबंडेंस. कई बार ऐसा लगता है कि उस टैलेंट के सामने हम बहुत ही छोटे हैं, शायद हम उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं हैं. सो मेनी अ टाइम यू फील वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब जैसे कि अभी ज्योति ने कहा कि डांस करो, तो एक पल के लिए मुझे लगा कि क्या मैं कर पाऊंगी. वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है.
because आजकल बच्चे इतने trained हैं, इतने they know what they want to do, and that was the talent that I saw in Nagpur. और जब इन्होंने जैसे इनके 10 साल का ख्वाब है विद्याधर जी का, thanks to his mother who has stood with him to realize, they हमेशा यही कहते हैं ना कि बच्चों के पीछे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है. शायद आप ही वो strength हैं जिसकी वजह से he is still going ahead. So I think he is very lucky to have a wonderful mother like you, ma'am. Thank you so much. Thank you. और yes, this was my experience and I'm looking forward to, मतलब मैं सितंबर का मतलब मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि हम जाए और इस टैलेंट को ढूंढे, उनके साथ हम कुछ experiences share करें. And thank you for giving us this opportunity, Vidyadhar ji. Thank you. Ma'am, I have a small question from both of you. Now that this goes out and our talents will start preparing, what would you suggest them? How should they proceed in their preparations for this reality show? Very honestly speaking, it depends on which genre she's selecting. Whether he or she is a singer or a dancer or a model. We have these 3 categories, right? So it really depends on how that person is looking into it and how much our gurus are ready to help them with. Because once they come to the platform, I think you are the ones who take over and judge them and groom them according to what they have already. So after that, I presume you all have 15-20 days in hand with yours before they can go into air. So 4 days. Only that is very, very little. Anyhow, give them a little more time. Because it will be difficult for you also to, coach a child in whether you're doing a modeling or any field, anything that you are doing. It becomes very difficult for you also and also for the child who's just come to you newly to know her nature and to know her how he is or she is and what are their actual plus points as well as minus points, you see, because that is what you have to enhance. What is the plus point you have to enhance and what is not there, you can help them that, okay, fine, you stress on this point. That's what I feel. I feel that is how you would like to judge. And then we come much later just to say yes, good, bad. But how many times have you said bad? I have always heard good. Yeah, but anyway, the hard work is yours, not ours. बट बीना जी ने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन बीना जी इसके पीछे एक छोटी सी और कहानी है. वो ये होता है कि ऑडिशंस लेने के लिए भी यही लोग वहाँ पे हाजिर होते हैं और ऑडिशंस कीपर्स, गुरुज, सुपर गुरुज मिलके ही ऑडिशन लेते हैं हर शहर में. और उसके बाद जब वो फाइनल 40 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं तो लगभग 30-40 दिन का बीच का समय होता है. उसके बाद में उनका शूट होता है. तब ये जाते हैं, 4 दिन का ट्रेनिंग ग्रूमिंग देते हैं, 1 दिन का टेक्निकल देते हैं और फिर सैटरडे को जूनियर का और संडे को सीनियर का शूट होता है. और ये समय हमें इसलिए लेना पड़ता है कि अगर भारत के 30 शहर कवर करना है, उसके बाद में 4 क्वार्टर फिनाले, 2 सेमीफिनाले, 1 नेशनल फिनाले, तो लगभग 37 वीक्स यानी लगभग 7-7.5 महीने का ये जो अंतराल है, अगर हम बैक टू बैक सैटरडे संडेज नहीं लेंगे तो असंभव हो जाएगा 1 साल के अंदर इस शो को ख़त्म करना. I understand that, but you have to. और वो अभी ट्रेंड है उठने के लिए, 4 दिन के अंदर वो बिल्कुल बिठा देते हैं फर्स्ट क्लास. God bless all of you. And all the people who come. Just be a part of it, enjoy what you're doing. Don't live under stress. Stress में क्या होता है कि अच्छे बच्चे भी, they falter at times. तो वो प्रेशर मैं हमेशा गुरु से यही कहूँगी कि उनको उस कॉम्पिटिटिव मोल्ड में आप लेकर ही मत जाओ. उनको एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस, एक जर्नी को ट्रैवल करने के लिए दीजिए. Let them enjoy their journey. It should not be कि भैया जैसे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई करनी है, होमवर्क करनी है. No, say you dance. You dance what you do, what you love doing, and you see you will get the best talent.
Did you all hear that? Yes? क्योंकि अभी सुधा जी और बीना जी दोनों स्टेज पर हैं, मैं चाहूँगा कि शरयू और रोहित जी को भी स्टेज पे बुला लिया जाए, ताकि एक हम छोटा सा जो आगाज़ करने जा रहे हैं उसका एक हम सभी लोगों के मैनेजमेंट के साथ एक फ़ोटो हो। उसके बाद में मैं गुरुज और इसको भी कोई सवाल जवाब होंगे। अश्विन ये प्रोमो देखना है। अरे अच्छा, प्रोमो देखना है। रोहित जी थैंक यू। अब मैं दरखास्त करूंगा सारे सुपर गुरुज जो सामने बैठे हैं, चारों के चारों इधर आ जाए प्लीज स्टेज पे। वेल, जैसे हमने पहले ही कहा कि शहजादे हुनर के एक ऐसा एक रियलिटी शो है, जैसे विद्याधर जी ने कहा, वी आर गोइंग टू एवरी सिटी फॉर ऑडिशनिंग, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे वहाँ आएंगे और हमारे जो गुरुज और मेंटर्स हैं उनमें से द बेस्ट टैलेंट को उठाएंगे एंड देन फाइनली हम लोग जाके उन्हें जज करेंगे। बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि हम जज करने के, एटलीस्ट मैं जज करने के लिए नहीं जा रही हूँ, उनके साथ वो जर्नी ट्रैवल करने जा रही हूँ, बिकॉज ये इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। बिकॉज व्हेन यू सी टुडे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाइए, कोई भी इवेंट्स में जाइए, तो बच्चे इतने टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड मैं बोलूँगी। एक वो टाइम था जब हम सिर्फ एक जॉनर में कॉन्सेंट्रेट करते थे, जैसे मैं सिर्फ डांस पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, हालांकि आई वॉज अ गुड सिंगर, बट मैंने कभी वो कोशिश ही नहीं की। बट आज आप देखेंगे तो बच्चे डांसर भी अच्छे हैं, सिंगिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, एक्टिंग के लिए भी तैयार हो गए हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज दिस टैलेंट, बिकॉज आज हिंदुस्तान में देर इज़ मतलब एक वॉल्केनो, एक सुनामी ऑफ टैलेंट निकल रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस रियलिटी शो के ज़रिए वो उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, वो सपने साकार कर पाएंगे जो सपने उन्होंने देखे हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। और मैं जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ मैं सिखाऊंगी जो मैंने सीखा है, और बहुत कुछ मैं उनसे सीखूंगी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ज्योति, बिल्कुल, ज्योति को देखकर मुझे वही दिन याद आया जब पहली बार मैं स्टेज पर आई थी। यू नो, जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट ईजी,
आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बोलती हूँ कि चलो एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ मैं डांस कर रही हूँ, बट वो जो बिगिनिंग का एक जो स्टेज होता है, देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड कि क्या मैं कर पाऊँगी, और अगर नहीं कर पाई तो लोग क्या कहेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था कि सोसाइटी, लोग, जिसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, आई यूज्ड टू गिविंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दैट। बट मैं उसके बाद मुझे पता चला कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। हुनर आपके अंदर है, आपको किसी के सामने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर टैलेंटेड, यू नो इट, एग्जिबिट योर टैलेंट। यू आर नॉट हियर टू प्रूव इट, यू आर हियर ओनली टू एग्जिबिट इट। तो ज्योति को देखकर मुझे वो वहाँ बैठी थी, तो मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे थे जब मैंने शुरुआत की थी। बहुत कठिन था, लाइक ऐसे कि आज जो हमने देखा उसके पीछे उसकी कितनी तपस्या है, कितनी बार वो गिरी होगी, कितनी बार वो उठी होगी, कितने बार उसने अपने मन को समझाया होगा कि तुम्हें कुछ बनना है। सो आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग। आई मीन व्हेन आई सॉ इट वाज नॉस्टैल्जिया, देयर वाज पेन, बट मोर देन पेन इट वाज प्लेजर। हमारे टाइम पे हमें ये नहीं सिखाया गया था कि आपको रियलिटी शो में जाना है, वो सब कुछ नहीं था। हमें डांस सिर्फ इसलिए सिखाया जाता था क्योंकि डांस के प्रति हमारा इंटरेस्ट था। बट आज मैं देख रही हूँ कि जब बच्चे ट्रेन होते हैं तो पहले से ही उन्हें ये सिखाया जाता है कि देखो वो रियलिटी शो है, ये रियलिटी शो है, देखो वो बच्ची कैसे कर रही है, वो बच्चा कैसा गा रहा है। तो पहले से ही उनको वो एक कॉम्पिटिटिव मोल्ड में डाला जा रहा है, विच आई पर्सनली फील इज़ नॉट नेसेसरी। सी एक आर्ट है, उस फॉर्मेटिव एज में उनको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्ट परफॉर्म करना चाहिए। कंपटीशन टेक्स इट्स कोर्स। सी आज जब हम परफॉर्म करते हैं, यस वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट द कॉम्पिटिशन हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिव ओरिएंटेड। जब वो एक नेगेटिविटी आ जाता है ना कि मुझे उसे हराना है, मुझे वो जीतना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दैट्स नॉट करेक्ट। तो आई विल स्टिल से फॉरगेट द कॉम्पिटिशन। आपके पास इतने एवेन्यूज़ है आज बच्चों के पास, मतलब दे हैव गॉट सो मच ऑफ एवेन्यूज, दे आर सो प्रिपेयर्ड, दे आर सो फोकस्ड। वो एक मिशन के साथ उतरते हैं। हम कोई मिशन के साथ हम नहीं उतरे थे। जैसे हमारे माँ बाप बोलते थे हम उस हिसाब से हम चलते रहे, चलते चलते टहलते टहलते इंडस्ट्री में आ गए, इंडस्ट्री में रुक गए। ऊपर वाले की मेहरबानी है, प्रेस ने हमको बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज भी हम यहाँ टिके हुए हैं। वी ग्रू, एटलीस्ट आई ग्रू एवरी डे। आई डोंट नो, बीना जी वुड डेफिनेटली एग्री विथ मी। हम कोई प्रिपेयर नहीं आए थे, ना हमने किसी क्लासेस में हम गए, ना हमारे कोई मेंटर्स थे। हमारे डायरेक्टर्स हमारे मेंटर्स थे। हम लोग जाते थे, पहले दिन हम यही बोलते थे कि सर एट योर डिस्पोजल सर, आप जैसे बोलेंगे हम वैसा करेंगे। और आज भी इसीलिए लाइक द डायरेक्टर्स विथ हुम वी आर वर्किंग टुडे, दे आर मच जूनियर टू अस। शायद वो असिस्टेंट्स रहे होंगे या फर्स्ट असिस्टेंट या सेकेंड असिस्टेंट, बट आज भी जैसे वो एज ए डायरेक्टर आते हैं हमारे सामने, सर आज भी झुकता है, बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड एक्सपीरियंस। तो दिस इज व्हाट वाज टॉट टू अस। टीना मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे मैम ने कहा कि अलग अलग तरह के टैलेंट आने वाले, तो क्या खास चीज़ देखने वाले हैं आप लोग, अगर कुछ बारे में कुछ पता है? वही तो हम कह रहे हैं कि हम खास कुछ देखने के लिए ही इंतज़ार करेंगे, मगर हम फोर्स नहीं कर रहे हैं बच्चों को कुछ। मतलब you see, when we put a kind of a stigma onto them that we want this category or we want this kind of a performance from you, then we don't really know what talent you have. Then एक बच्चे को automatically गुरुज भी बोलते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये मूवमेंट करना है, आपको वो मूवमेंट करना है। आपके पेरेंट्स भी बोलने लगते हैं कि देख उसको, ये एक कंपैरिजन्स आ जाते हैं। मगर when you let the child develop her or his own talent, which is there within all of us, कुछ ना कुछ आप में भी है जो हम में नहीं है, और जो हम में है वो आप में नहीं है। तो this is not a fight, it is a kind of an appreciation. It's a platform of appreciation. We are there only to say, yes, amongst all them, this is one of the people who I feel would excel. We go one step ahead and we say, we go and you excel to this, so that you have a bigger platform than us to go ahead and move in your life. Because अगर आज हम बोल रहे हैं कि बच्चे को हम यहाँ तक लाए हैं,
तो यहीं पे रुको, वो तो हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म एक ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि यहाँ से हम इतना तो बोल सकते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो। जहाँ पे आप बाकी सब टैलेंट्स में जाते हो, वहीं से रिजेक्ट होके घर जाके वापस चले जाते हैं वो लोग। जितने भी आप टैलेंट्स देखें, they go there, they interview them, they are selected through their interviews, not through their performances. Here we are maybe allowing them to not only interview them, we are training them, we are also allowing them to perform. So when they are performing, then they are getting the confidence by the time. By the meantime, or in the period of time, they are experiencing not only themselves, but the people who are also their companions. So like 40 people, if they are together, automatically they exchange their feelings, their experiences, and they become a family. When they become a family, many things that perhaps I could learn from this, I could learn from that, I could adapt from this. It happens. And you learn much more. But when you're sending everyone, 4 बच्चे मैंने एक्सेप्ट कर लिए, बाकी मैंने 30 को निकाल दिए, तो उसमें वो 30 बच्चे तो मायूस होके ही तो वापस जाए। कहाँ जाएंगे वो लोग? वो लोग तो कहीं और नहीं जा सकते हैं। वो लोग जाएंगे तो फिर और एक किसी जगह पे फिर से ऑडिशन, फिर से वही सेम चीज़ हो जाता है। कभी हाँ भी होता है, कभी ना भी होता है। सबके लिए है। आई एम नॉट सेइंग नो. All the people, 40 people, they are not going to be selected for the finals. But yet they know that yes, we have gone through this journey. We've gone through a certain kind of journey. So that is something that is very inspiring. Also, आप दोनों के बीच में किस तरह का डिस्कशन रहेगा जब मतलब बहुत टाइम ऐसा भी आएगा जब डिसएग्रीमेंट होगा आप दोनों के बीच में, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि See, her genre is for judge for dance, for dancing, and I'm the judge for only modeling and other things. So हमारे बीच में वो डिफरेंस आने की नहीं, बट फिर भी हम तीनों जैसे हम हैं, we will definitely discuss. Yes, we will because discuss. we are all on the same platform. Yes. See, almost like minded ही है, जैसे बीना जी सोचेंगी वैसे ही एक, बिकॉज इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद कहीं ना कहीं तो हमारी सोच एक कॉमन सोच, एक कॉमन पॉइंट तो है ही हमारे लिए. नागिन में मैं क्या कर रही हूँ? नागिन में नहीं, नागिन में थी मैं, बस हूँ, चल रहा है. उसमें तो नागिन ही बोलती है, हम कहाँ बोलते हैं? हम तो नागिनों को नचवाते हैं. हम तो नागिनों को अपने घर में पालते हैं और उनको नचवाते हैं. हाँ सर. ऐसा कोई भी रोल नहीं मिला जिसमें डांस है. ये मेरी मतलब दुविधा है या दुख भरी बात है, मैं कह सकती हूँ. डांस और मुझसे कोई नाता ही नहीं रहा इंडस्ट्री में, नहीं मिला. मैं तो तरस रही हूँ एज अ डांसर. नाची मयूरी के बाद ऐसा कोई भी फिल्म नहीं मैंने किया जिसमें जो डांस ओरिएंटेड रहा. इनफैक्ट शर्म की बात यह है कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं, अरे यार ये नागिन वाली आंटी तो डांस भी करती है. तो अब रिवर्स में जाने लगा है कि अच्छा आप तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा आप डांस भी करती हैं. तो ये वो एक गैप आ गया है. और लास्टली मैम कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है उनके लिए? मैसेज क्या देंगे? ओपन योर माइंड एंड हार्ट एंड सी ऑल द टैलेंट. Yes, appreciate the talent. Appreciate the talent. Because I think talent begins from home. Yes. क्योंकि the talent starts from there. नवरस होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब एक मयूरी से आज एक नेगेटिव कैरेक्टर किरदार में दोनों में मुझे एक्सेप्ट करना, इसका श्रेय मैं अपने डांस को ही दूंगी.
क्योंकि लोग जब भी मुझे देखते हैं या जब परफॉर्मेंसेस देखते हैं, लोगों का यही कहना है कि आंखों से कमाल की एक्टिंग करती हो। तो वो कोई एक्टिंग यहाँ नहीं है, वो डांस है जो हमने बचपन से सीखा है। तो एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना एज अ डांसर मेरे लिए बेहद आसान हो जाता है। बट अब चूंकि एक रियलिस्टिक अप्रोच टू एक्टिंग आ गया है, तो कई बार लोगों को लगता है कि हम थोड़े ओवर एक्टिंग भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से नागिन में मुझे ओवर एक्टिंग की दुकान का टाइटल भी मिला था। बट माई पॉइंट इज, एक्टिंग हो या ओवर एक्टिंग, लोगों को पसंद आता है, बस ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। वेदर दे कॉल इट हैमिंग, दे कॉल इट ओवर एक्टिंग, आई डोंट केयर। लोग मुझे पसंद करते हैं, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट अवार्ड है लाइफ में। सबको